run this session up to only sir to come on the desk, and I request the other paper panelists. Madam, please come on the desk. Dr. Ganga Sahai Mira, Associate Professor, CIL, JNU. Sir, please come on the desk. भक्ति आंदोलन में संत चरितार्थ, मानवतावाद और जाति संरचना के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष हैं माननीय प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी और विद्वत वक्तागण हैं डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर संजीत मिश्रा। Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Sarika and I feel privileged to welcome you all on behalf of the Shamlar event to this 2 days international conference. This is my honor to introduce the chairperson, Professor Jagdishwar Chaturvedi, and the galaxy of intellectuals of this session. Professor Chaturvedi is in the Department of Hindi, University of Calcutta. Sir, you hardly need any introduction. You have made all of us proud by your distinguished works. You are an idol of knowledge and experience and an inspiration to all of us. He has written more than 40 books and 1800 articles and many other books which are yet to come. His area of specialization is journalism and mass media, literary criticism and women's study in Hindi. Besides this, he has awarded for Qawmi Ekta Award for Peace and Harmony given by All India Qawmi Ekta Manch in 2013. Sir, it is a great privilege for us to have you here. Now request to Dr. Harish Khanna sir to welcome Professor Chaturvedi with a bouquet and memento. Sir. Thank you. Is Dr. Poonam Kumari. She is an associate professor in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She has published 5 books and 40 research articles in leading journals. Her religion, Hindi Bhakti poetry, gender studies and feminist discourse, interdisciplinary research, writing poetry, media and marginalized communities, and modern context of country. She has also offered to teach for quarter at University of California, US. She has selected 2 times for the Best Teacher Award. Ma'am, it will be a great privilege for us to listen to you. Now I request to Dr. Amit sir to welcome Poonam ma'am with a bouquet in memento. हमारे सत्र के दूसरे वक्ता हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी। आपकी बहुत सी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आदिवासी साहित्य विमर्श नाम से मीना जी की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही आदिवासी दर्शन और समकालीन आदिवासी लेखन की त्रैमासिक पत्रिका आदिवासी साहित्य के संस्थापक संपादक हैं। सन 2011 में आपको दलित आदिवासी संवाद लेखन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं अनुरोध करती हूँ हिंदी विभाग के डॉक्टर रामरूप मीना जी से कि वे आएं और डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी का स्मृति चिन्ह और पुष्पों द्वारा स्वागत करें। Professor in the Department of Applied Sciences and Engineering in IIT Roorkee, Uttarakhand. His area of specialization is 20th century British literature, post-colonial literature, contemporary critical theories, and Indian writing in English. Now I request to Manu sir. Dr. Manu sir, please come on the stage and welcome Dr. Mishra. Professor Vanya Rancheva from Sofia University, Bulgaria. And I request Dr. Harish Khanna sir, please welcome her the bouquet in memento. Thank you. Thank you, ma'am, for being here, and it is Sir, an honor to have you with us. I think
about this very dynamic topic. Now I request to Professor Jagdishwar Chaturvedi sir to take further proceedings of this session. रोशनी देने की जरूरत है, तो मैं सबसे पहले गंगा प्रसाद मीना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए उनको विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरे भक्ति आंदोलन को आदिवासी नजरिए से देखने के लिए 1 घंटे का सोच के आया था कि 1 घंटे से बोलना ही होगा। बहुत शॉर्ट में पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ मैं। कोई भी नए दर्शन या विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में अगर पुराने साहित्य का मूल्यांकन करना हो, पुराने किसी काल या विचार का मूल्यांकन करना हो, तो उसकी 2 प्रविधियाँ हो सकती है और हिंदी साहित्य में हमें दिखाई पड़ती है। एक ये कि उस दर्शन से मिलती हुई चीज़ें या उस दर्शन से संबंधित चीज़ें खोजकर हम उनको एक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करें। जैसे दलित साहित्य आया, नारीवादी साहित्य आया, तो उसके आलोक में ये खोजने की कोशिश हुई कि दलितों का पहला रचनाकार कौन है। लोग कबीर और बुद्ध तक भी पहुँचे और उसके बाद की जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने की कोशिश हुई। हिंदी साहित्य का सवारकर इतिहास लिखने की कोशिश हुई, उसमें दलित साहित्यकारों को खोजा गया। इसी तरह से जब नारीवाद के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य को देखा गया तो मीरा और महादेवी के तो नए मूल्यांकन सामने आए। हिंदी साहित्य का आधार इतिहास के माध्यम से या और तमाम अध्ययनों के माध्यम से पूरी एक श्रृंखला और उस परंपरा को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि आदिवासी समाज की उपस्थिति ना के बराबर रही है हिंदी साहित्य में, इसलिए एक और अन्य प्रविधि साथ में चल रही है। वो प्रविधि है कि उस नए विचार के आलोक में उस पुरानी चीज का मूल्यांकन करें और उस विचार की उपस्थिति इस रूप में देखें कि उस विचार के पैमाने पर हम उस साहित्य को कहाँ पाते हैं। जैसे मार्क्सवाद के एक विचार को लेकर जब प्रोफेसर मैनेजर पांडे भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य की रचना करते हैं तो उसमें एक चैप्टर अलग से वो सूर का काव्य और किसान जीवन जोड़ते हैं और उसके बारे में विस्तार से वो लिखने की कोशिश करते हैं नया परिप्रेक्ष्य। आदिवासी दर्शन के लिहाज से आप भक्ति साहित्य या भक्ति आंदोलन को देखें तो कुछ इसके सकारात्मक बिंदु भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ नकारात्मक। सबसे पहले जो आदिवासी दर्शन में बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये आदिवासी साहित्य का निर्धारक तत्व है, जिससे आप आदिवासी साहित्य है या नहीं इसका निर्धारण कर सकते हैं। 3 चीजें ऐसी दिखाई पड़ी मुझे भक्ति साहित्य में जो आदिवासी दर्शन से बहुत मेल खाती है। एक, उसमें जो प्रेम की अभिव्यंजना है, प्रेम की प्रधानता है, खासतौर पर जो एक प्रमुख धारा है प्रेम मार्गी धारा, उसके साहित्य को देखें तो वो एक जो आदिवासी दर्शन से मिलती हुई चीज है कि प्रेम में जीवन की वो प्रतिष्ठा करता है, वो उसमें एक समान चीज दिखाई पड़ती है। दूसरा, जो जाति पाति के भेदभाव के खिलाफ एक समानता का नारा कबीर और दूसरे निर्गुण संत लेकर के आते हैं, वो काफी मिलती जुलती चीज दिखाई पड़ती है। तीसरा, एक जो पांडे जी अक्सर कहते हैं अपने व्याख्यानों में कि जो भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह देसी भाषाओं में लिखा जाना। जब ज्ञानेश्वर के काव्य में अर्जुन कृष्ण से सवाल कहते हैं कि आप जो बात कह रहे हो वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी भाषा में क्या होगा। तो ये जो मेरी भाषा या मातृभाषा का सवाल है, इस मातृभाषा के सवाल के साथ भक्ति आंदोलन खड़ा होता है। ये 3 चीजें मिलन के बिंदु कहे जा सकते हैं। आखिर में पॉइंट्स में जो चीजें भक्ति आंदोलन को आदिवासी दर्शन की दृष्टि से एक कमजोर आंदोलन और मैं कह सकता हूँ कि कुछ मामलों में प्रतिक्रियावादी भी, वो मैं आपको उन बिंदुओं के बारे में बताना चाहूँगा। आदिवासी दर्शन की बुनियादी स्थापना है जो बाहरी दर्शन या बाहरी समाज से उसको खुद को अलग करता है कि वहाँ पर जो मनुष्य की श्रेष्ठता का दावा है ये उसको आदिवासी दर्शन खारिज करता है। हम कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। आदिवासी दर्शन इस धारणा को खारिज करता है। वो दूसरे तमाम जीव जंतुओं, नदी पहाड़ के भी अस्तित्व को उतना ही महत्वपूर्ण मानता है, उनके होने को और उनके बचाने को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन आप देखेंगे कि मध्यकालीन काव्य में मनुष्य की श्रेष्ठता, जो ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया और उसको लगातार उसकी प्रशंसा में जो कुछ साहित्य लिखा गया, तो आदिवासी दर्शन की दृष्टि से मैं समझता हूँ वो कमजोर साहित्य है। दूसरा, आप देखें कि जो वहाँ पे प्रेम की बात करते हुए भी जायसी
भेदभाव के समर्थन में खड़े होते हैं। मैं झांसी के पद्मावत से करवक की कुछ पंक्तियां आपको सिर्फ सुनाना चाहूंगा। कीने से कोई ठाकुर कोई दासू, कीने से तिन कहें बहुत विरासू। किसी को तुमने ठाकुर बनाया है, किसी को दास बनाया है। हाँ, तो इस भेदभाव के पक्ष में मतलब वो उस ईश्वर को याद कर रहे हैं जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो जायज ही इस बात के पक्ष में खड़े होते हैं कि किसी को तुमने धनवान बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को राजा बनाया है, किसी को उसका सेवक बनाया है, और ये सृष्टि तुम्हारी है, जो सब कुछ किया है वो बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छा है। तो ये भेदभाव के समर्थन में इसके विस्तार में मैं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ उसके लिए गुंजाइश नहीं है। तुलसीदास की तो पूरी रचना भेदभाव से भरी हुई है, खासतौर पे जो एक मिथ के सवाल है राक्षसों को प्रस्तुत करने का। असुर एक समुदाय है, उस समुदाय को आपने असभ्य, हिंसक और बर्बर के रूप में जो प्रस्तुत किया, उसके लिए आपसे बार बार सवाल पूछा जाता रहेगा। और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन पर्ची आज चुकी है। आपने धैर्य से सुना, धन्यवाद। जगदीश्वर चतुर्वेदी जी और इस सेमिनार के आयोजकों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस कॉलेज के प्रिंसिपल को और हरीश खन्ना जी को, आयोजकों को, कि उन्होंने ये विषय चुना। आजकल सेमिनार तो बहुत होते हैं, लेकिन मध्यकालीन हिंदी साहित्य को विषय वस्तु के रूप में रखना सेमिनार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इस पर करवाना बहुत कम सुनने को मिलता है। इसलिए निश्चय ही ये जो भी आयोजक हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये विषय चुना आज सेमिनार के लिए। मुझे कल बोलना था और कल का जो टॉपिक था उसके अंतर्गत मुझे बोलना था भक्ति पोएट्स एंड देयर रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और उसमें मुझे विद्यापति के रिलेवेंस पे, विद्यापति के राधा के रिलेवेंस पे बात करनी थी, लेकिन कल मुझे एक और सेमिनार में जाना है, इसलिए मैंने कहा कि आज ही अनुरोध किया और उन लोगों ने मेरी अनुरोध मान ली। मैं यहाँ पर विद्यापति के राधा की प्रासंगिकता के संदर्भ में कुछ बात करना चाहती हूँ। प्रश्न ये उठता है कि आज हम विद्यापति को क्यों पढ़ें? क्या ये जानने के लिए कि राधा और कृष्ण का प्रेमोत्कर्ष पदावली में किस रूप में चित्रित है? ये जानने के लिए कि विद्यापति के राधा और कृष्ण अपना देवत्व छोड़कर, अपना मिथकीय चरित्र छोड़कर लौकिक युवक और युवती के रूप में प्रेम करते नजर आते हैं? ये जानने के लिए पढ़ा जाए, या ये जानने के लिए पढ़ा जाए कि राधा का सौंदर्य विद्यापति की पदावली में कितना अप्रतिम रूप में चित्रित है? इन रूपों में या इस तरह से हम विद्यापति की पदावली को पढ़ चुके हैं। अब तक की जो भी आलोचना है विद्यापति की पदावली की, मैं नाम नहीं लूंगी, जो भी आलोचना है वह इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है, राधा के सौंदर्य के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी आलोचना नहीं आई जिसमें राधा के उस पक्ष को रेखांकित किया गया हो जो आज के स्त्री चित्त के अत्यंत करीब पड़ता है और आज भी राधा को अत्यंत प्रासंगिक बनाता है। वो है राधा का अपना व्यक्ति स्वातंत्र, वो है राधा का स्वमान, जिसमें विद्यापति की पदावली में ऐसे पद भरे पड़े हैं। और मैंने रिसर्च पेपर लिखा जो आलोचना में पब्लिश हुआ था, उसमें मैंने गिनाया है विद्यापति की जो प्रामाणिक पदावली मानी जाती है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के से 3 भागों में वो अलग अलग प्रकाशित हुई है, और जो प्रामाणिक पद माने जाते हैं वो 375 के आसपास माने जाते हैं। और उन 375 पदों में से लगभग 100 से लेकर 110 पद मैं संख्या के साथ यहाँ आई थी, लेकिन अभी मैं बता नहीं पाऊंगी, समय कम है। लगभग 110 पद ऐसे मिलते हैं जो राधा के व्यक्ति स्वातंत्र को दर्शाते हैं, जो राधा के आत्मसम्मान को दर्शाते हैं। लेकिन हमारी हिंदी आलोचना का ध्यान इस तरफ अभी तक गया ही नहीं था कि विद्यापति 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसी राधा का सृजन कर रहे थे जो शताब्दियों बाद तक प्रासंगिक रहेगी, और जो शताब्दियों बाद तक प्रासंगिक है। और विद्यापति ही क्यों, हमारा ध्यान तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की तरफ इस दृष्टि से गया ही नहीं है। विद्यापति की राधा ही क्यों, पृथ्वीराज रासो की सहयोगिता को आप देखिए, वैसा व्यक्ति स्वातंत्र मिलता ही नहीं है। विसदेव रास की राजमती को देखें, हम कहते हैं कि स्त्री विमर्श जो है वो आधुनिक युग की चीज है, लेकिन हम अपने पीछे के साहित्य को भूल जाते हैं और हमारे यहाँ ऐसे पुरुष रचना ध्यान देने की बात। और सुखद आश्चर्य ये है कि राधा का चित्रण किसी स्त्री ने नहीं किया है कि उसने व्यक्ति स्वातंत्र को दिखाया है। राधा का चित्रण 14वीं शताब्दी में विद्यापति ने किया है।
सहयोगिता का चित्रण चंद्रबरदाई ने किया है और ऐसी स्त्रियों का सृजन किया है जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से, व्यक्ति स्वातंत्र्य की दृष्टि से। क्या मैं बात खत्म करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगी, जिसकी तरफ उर्मिलेश जी ने ये प्रश्न किया था कि क्यों तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद निर्गुण भक्तों के यहाँ स्त्री को लेकर दूसरी मानसिकता है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये निर्गुण भक्तों की ही समस्या नहीं है या सगुण भक्तों की ये समस्या नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में ये विद्यमान है, जहाँ ऋग्वेद से परंपरा शुरू होती है और ऋग्वेद में ही जहाँ एक और स्त्री की प्रशंसा और सम्मान के पद कहे गए हैं, वहीं दूसरी ओर तिरस्कार और उपेक्षा के पद कहे गए हैं। दोनों पैटर्न चलता है। मैंने एक रिसर्च पेपर में दिखाया है कि किस तरह से ऋग्वेद से लेकर आज तक स्त्री के दोनों पक्ष, एक तरफ प्रशंसा और दूसरी तरफ तिरस्कार, ये दिखाया गया। और ऐसा क्यों है, ये उर्मिलेश जी ने प्रश्न उठाया था, मैं इसका उत्तर देना चाहती हूँ। क्योंकि आज जिस स्त्री को हम जानते हैं वो स्त्री एक पुरुष द्वारा सृजित की गई है और पुरुषों ने मनुष्य के दोनों पक्षों को एक ही स्त्री में दिखा दिया है, जबकि पुरुषों के अंतर्गत दो वर्ग रखे हैं। एक अच्छे पुरुषों का वर्ग है, सम्मान और प्रशंसा का वर्ग है, और दूसरा वर्ग जो है वो दानों का है और तिरस्कृत और निंदनीय पुरुषों का वर्ग है। लेकिन स्त्रियों में दोनों पक्षों को एक साथ रख दिया है और स्त्री के दोनों पक्षों का एक साथ चित्रण किया है। इसलिए ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में शुरू से लेकर अंत तक ये चीज मिलती है। और विद्यापति की राधा आज बहुत ही प्रासंगिक है, और भी बिंदु थे लेकिन समय कम है, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन सुपर प्रेसिंग करनी पड़ेगी मुझे 3 मिनट में, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर अपनी बात को मैं यहीं से शुरू करूँगा। वैसे तो मैं कुछ और कहने आया था, लेकिन पहले तो एक प्रश्न आया मन में, उसका उत्तर देता हुआ चलूँ, फिर समय बचेगा तो और कुछ कहूँगा। मेरे पहले विद्वान वक्ता डॉक्टर वीणा जी, संभवतः मैं सही हूँ, इनका एक प्रश्न था या ऑब्जर्वेशन है कि तुलसीदास जी ने असुरों को वैसा क्यों दिखाया। तो वैसे तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। अगर असुर को असुर नहीं दिखाया जाएगा तो फिर कैसे दिखाया जाएगा? अगर ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद से जोड़ा गया तो असुर को आसुरी शक्तियों से जोड़ने में क्या हानि है? करनी पड़ेगी। आज जैसे कि ब्राह्मण भी कम्युनिटी है, और ब्राह्मणवाद को जैसे खराब माना गया। खैर मैं जाति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरी बात कुछ और थी। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा इसके न्यू हिस्टोरिकल एनालिसिस करना चाहता था कि जो भक्ति मूवमेंट आया, क्यों आया, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इसको कुछ साधु संतों को या देश के तमाम संतों को इकट्ठा होना पड़ा और एक खास तरह की लय, एक खास तरह की कविता उनको लिखने पर मोटिवेट होना पड़ा। बात नहीं, मोटिवेट भी कहा जा सकता है। मोटिवेट क्यों, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी? क्या देश उस समय बहुत अच्छा था? क्या सब कुछ ठीक ठाक था? और अगर सब कुछ ठीक ठाक था, ईश्वर की आराधना में सभी लोग लीन थे, तो फिर इस मूवमेंट की क्यों जरूरत पड़ी? जब भी हम अच्छे वक्त में होते हैं तो शायद इस तरह की किसी मूवमेंट की जरूरत हमको नहीं पड़ती। तो थोड़ी बहुत मैंने एनालिसिस की, मैंने पाया कि उस समय कुछ ऐसी शक्तियां हावी होना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से पूरे देश की स्थिति खराब होती चली गई थी। सांस्कृतिक पतन होना शुरू हो गया था। फिर आप कहें कि वो पास की बात है, पास को क्यों दोहरा है, लेकिन नहीं, इतिहास, हमारा भविष्य इतिहास की नींव पर ही चलता है और इतिहास की बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। क्या भविष्य में हमको उससे कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं, थोड़ा बहुत इस पर भी विचार करना चाहिए। वो परिस्थितियां बहुत बेकार थी। अभी मैं रास्ते में आता हूँ, पढ़ रहा था कि जो उस समय तुलसीदास जी के समय जो हुक्मरान थे, जो इस देश को रूल कर रहे थे और जिनका सीधा सीधा मैसेज, तुलसीदास जी का सीधा सीधा मैसेज उनको जा रहा था। सभी मोस्टली भक्तिकालीन के पोएट्स का एक मैसेज हुआ करता था, सत्ता पक्ष को चैलेंज करने का।
तुलसीदास जी ने दूसरा तरीका अपनाया, वो डायरेक्टली उस तरह से चैलेंज, ही डिडंट चैलेंज इट दैट वे। उन्होंने अपने राम के और रामचरितमानस के थ्रू उन्होंने चैलेंज किया, उसको चैलेंज किया जिसके समाज में 655 लोगों के पास पूरे देश की ज्यादातर जनसंख्या, मतलब एक तरफ 120 मिलियन और एक तरफ 655 फैमिलीज बराबर थी। ये उस समाज को, उस राजा को, उन एम्परर्स को चैलेंज किया जिन्होंने, जब ब्रिटेन में यूनिवर्सिटीज बन रही थी उस समय ये यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अपने सेल्फ के लिए, लेविश लाइफ स्टाइल के लिए, इसके अलावा कुछ भी उनका उद्देश्य नहीं था, ऐसे लोगों को चैलेंज किया। और जहां भी आपको पता है, जहां भी विलासिता आ जाती है वहां पतन होना निश्चित है, चाहे वो नंदवंश हो, चाहे वो फ्रांस का लुई 16 का एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, चाहे वो ये मुगल काल हो, पतन तो स्वाभाविक था। भले हम चाहे जितना भी गुणगान कर लें।